पढ़ाई में ऐड हो जाओ, जैसे हम भी अपने सब कुछ को छोड़ करके तुम लोग को पढ़ाने में ऐड हो जाते हैं। ये सोचो कि हम लोग क्लासरूम में हैं, बिल्कुल मत सोचो कि हम घर में हैं। यस मैम। हाँ, ये 0 डिग्री imaginary line that cut the earth into two parts, in northern hemisphere and in southern hemisphere. Yes ma'am. And this main line that cut the earth into two parts, that is the equator, and on this line sun inclination is straight. Whatever radiation of sun, whatever light of sun that fall on the earth here near about the 0 degree, it is a straight radiation. Inclination of sun is a straight, means whole year it is hotter place. Since inclination of sun is straight for the whole years, so this area of the earth receive maximum amount of sunlight. And Yes. near about the 23 and half in the northern hemisphere and in the 23 and half in the southern hemisphere, the temperature is less because due to inclination of the sun. Here, Yes ma'am. light of sun is not straight. Some it is in the inclination, in the slanting condition, and Yes, that's why these areas receive less amount of sunlight in compared to 0 degree Celsius. So what happened on the 0 degree on the equator? So due to sun heating, the air is rise up. After as you have studied yesterday, when the heating takes place, the after getting the heat, kinetic energy of the molecules increases and the molecules rise up. Yes ma'am. Yes and ma'am. evacuated the place. When the air molecules rise up, then this place become evacuated. मतलब evacuated मतलब खाली हो जाना. As Yes you ma'am. can see, at the tropic of Capricorn and at the tropic of Cancer, these areas receive less amount of heat. That's why somewhat here have the lesser temperature that creating higher pressure of the air in compared to equator. यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होता है, इस जोन में टेम्परेचर जोन में प्रेशर कैसा हाइयर, इसके कंपेयर में इक्वेटर के कंपेयर. तो क्या हो गया, प्लेस इवैक्यूएट हो गया, एयर ऊपर चला गया, तो यहाँ जगह खाली हुआ ना, तो इस जगह को भरने के लिए कौन आएगा, वो कौन आएगा, एयर प्रेशर. एयर विल कम फ्रॉम हाइयर प्रेशर. Air to lower pressure. From higher pressure to low pressure. Lower pressure. Same Yes, ma'am. thing Yes, happened between the 66 half and in the northern and 66 half in the southern. Same thing happened. And as you are knowing, in the northern North Pole and at the South Pole, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? sunlight कभी नहीं पहुंचता है. तो then what happened? Temperature is very low. Water always present in the frozen form. Water किस फॉर्म में होता है? Frozen form में होता है. Yes, Creating ma'am. the pressure area.
एयर का प्रेशर कैसा होता है, हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। और फिर एयर जो है इसके कंपेयर में, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कंपेयर में, यहाँ से एयर फिर क्या होगा, यहाँ हेलो, क्या वो इतनी कंपेयर में- परेशान क्यों हो? अरे यार हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों, क्या हो गया? सब बोल रहे थे मैम बाहर युवराज की कुमार चीजें के माइक से आवाज आ रही है। हाँ अभी म्यूट कर दिया युवराज को। देखो एकदम गजब कंडीशन है। अरे कितना समझा करके तुम लोगों को, कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो। अभी सी ब्रीज, लैंड ब्रीज वैसा ही इंपॉर्टेंट है। अब जो देखो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसी के वजह से जो है विंड जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस फ्लो करता है। अभी अभी कौन सा विंड आया जिसके वजह से रेनिंग हुआ है, बोलो। 2-3 को तो ओपन किए हैं, तुम लोग न्यूज तो देखे हो। छवि और वो सानवी शर्मा, दोनों में से कोई बोलो, तुम लोग अनम्यूटेड हो। अभी तो कोई विंड ही आया है ना। हाई प्रेशर, हम लोग के यहाँ कैसा प्रेशर था, लो प्रेशर एरिया, बहुत गर्मी थी। हाँ अपराजिता, यस चलो अपराजिता, यू आर मैम ऑस्ट्रेलिया से विंड आई थी। मैम, मैम आप क्या पूछी? मैम हम पूछे कि ऑस्ट्रेलिया से ये किस विंड पैटर्न से, कहाँ से ये विंड आया है जो कि रेन लाया है, हम लोग को सुकून दिया है। मैम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हाँ सो तो ठीक है, लेकिन किस जगह से आया, न्यूज में दे रहा था और इसका स्पीड भी दे रहा था। उदित राज, यू आर अनम्यूटेड। चलो यस मैम। हाँ, कहाँ से ये विंड राइज हुआ है, कौन से एरिया में? अनिका शर्मा, यू आर मैम ऑन विंड। गुजरात। हाँ मैम गुजरात। मैम गुजरात। गुजरात से। और इस विंड का क्या नाम है? मैम ताउते। साउथ साउथ, मैम ताउते। साउथ साउथ टेक। और इसका स्पीड, यस इसका मैम? स्पीड मैम 150 किलोमीटर पर आवर। 150 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। ये जो स्पीड, ये जो चला है, ये क्यों चला है? उस जगह पे वहां कहीं भी हाई प्रेशर था। हाँ वहां कहीं भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट किया होगा। और अब ये विंड जो है सी में ही जो है इसका फॉर्मेशन हुआ और वहां से गुजरात होते होते हम लोग के पास भी आ गया है। क्योंकि हम लोग के पास भी 2-3 दिन से कितना हाई हीटिंग हो रहा था ना। हाई हीटिंग मीन्स Yes, ma'am. लो प्रेशर एरिया। हाँ तो इसके वजह से यहाँ तक ट्रेवल Yes, कर ma'am. गया। और ये स्पीड किस पे डिपेंड करता है? ये स्पीड जो डिपेंड करता है डिफरेंट इन द प्रेशर ऑफ टू प्लेसेस। If the pressure difference is more, the speed will be faster. अगर कहीं का प्रेशर जो है मान लो कि 10 बैरोमीटर और कहीं ये बीच में सर्कल में है, इसको रब कर दे, इसको रब कर दे, यस इसको रब कर देते हैं। यस मैम। ये यहाँ सपोज दैट 10 बैरोमीटर इसका प्रेशर है, इस एरिया का प्रेशर है। और नियर बाई एरिया का प्रेशर अगर 50 बैरोमीटर है, बैरोमीटर 50, तो ये 40 का डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस और ज्यादा हो, अगर ये 80 बैरोमीटर है, यहाँ 10 बैरोमीटर है, तो अब जो ये चलेगा वो क्या होगा, वो पहले वाले से क्या होगा, वेरी वेरी फास्ट। इस एयर, ये जो इवैक्यूएटेड एयर प्रेशर, ये जो प्रेशर कम हो गया है, यहाँ का एयर जो है ऊपर चला गया, तो खाली जगह को फील करने के लिए यहाँ से ये चारों ओर जो है हाई प्रेशर एरिया है, तो वहां से स्पीडली विंड चलेगा, हाई स्पीड का विंड चलेगा। अगर दोनों के बीच डिफरेंस है, बैरोमीटर क्या होता है? अगर कम है बैरोमीटर तो स्लो स्पीड,
अगर डिफरेंस जो है ज्यादा है तो हाई एयर स्पीड। मैम बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एयर प्रेशर मेजरमेंट करने का एक इक्विपमेंट। मैम एक डिवाइस है ना जो एयर प्रेशर मेजर करता है। हाँ, वो डिवाइस है जो एयर प्रेशर मेजर करता है। तो मैम 80 बैरोमीटर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ होगा? नॉर्थ और साउथ पोल के पास। वहां का एयर जो है पूरा बिल्कुल कंट्रैक्टेड होगा। हाँ, यस मैम। अब ये समझ में आया कि ये जो 180 पर किलोमीटर पर आवर 180 किलोमीटर पर आवर का वो वेव क्यों आ गया? हाँ, कैसे आ गया? अब रेनिंग क्यों आया? उसमें रेन वाटर कैसे लाया? बोलो, क्या मानसून आ गया? तो मैम मैम No, ma'am. हॉट एयर क्लाउड में चेंज हो गया और प्रेसिपिटेशन होके रेन वाटर में फॉल डाउन किया। वो हॉट एयर तो चला था बीच में कहीं भी वाटर मिला उससे लोडिंग हो गया, वाटर उसमें लोड कर लिया। हाँ, वाटर लोडिंग हुआ और यहाँ आते आते प्रेसिपिटेशन हुआ तो रेनिंग हुई। नेक्स्ट, अब चले ये यहाँ देखो, इस पेज में देखो 70 एट द पोल्स, सेकंड पैराग्राफ 70 पेज सेकंड पैराग्राफ। एट द पोल्स द एयर इज कूलर देन दैट at the latitude of say about 60 degree, hence the wind current here are set up from pole towards the warmer latitude। हमेशा जो है वार्मर से कैसे कोल्डर की वार्मर जो है उस प्लेस को भरने के लिए कोल्डर जोन से एयर का रसिंग होगा, एयर रस करेगा। एंड मैम वार्मर जोन की एयर मैम ऊपर चली जाएगी हल्के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, यस अभी तो कन्वेक्शनल करंट फ्लो करेगा, कन्वेक्शनल करंट के वजह से जो है एयर का फ्लोइंग होगा। और इसीलिए देखते थे पहले जमाने में जो चिमनी घर में विंटर सीजन में मेज लोग बनाता था तो उसका चिमनी लंबा बनाता था कि एयर जो है निकल जाए, जो गर्म एयर जो है हॉट एयर निकल जाएगा। अभी हम लोग के घर में जो चिमनी आ रहा है चूल्हे के पास, तो हॉट एयर को बाहर निकाल दे रहा है, तो कूलर एयर कहाँ से आ जा रहा है? विंडो से आ जा रहा है, ओपन डोर है उससे कूलर एयर आ रहा है। यस मैम। चिमनी का यही मैम प्रॉब्लम वो है ना। हॉट एयर कहाँ चला जाता है? मैम वो हॉट एयर कहाँ स्काई में चला चला गया, जाता है? स्काई में चला यस गया मैम। तो हॉटर एयर बाहर निकल गया तो कूलर एयर आराम से आ गया। एग्जॉस्ट का भी यही है ना मैम। अब देखो बिना, अच्छा पहले फिनिश करने दो। एग्जॉस्ट जो फैन चलाते हैं उसमें क्या ऐसे फैन नहीं चलाएंगे तो स्लो स्पीड से बाहर जाएगा नहीं, हॉट एयर तो Yes. जाना है यस मैम। लेकिन स्पीड कैसा होगा? स्लो होगा। आज जैसे एग्जॉस्ट फैन रन कर देते हैं तो वो आराम से ऊपर से जितना हॉट एयर राइज अप हुआ और एग्जॉस्ट उसको बाहर कर दिया, तो बाहर करने से क्या हो गया? अब विंडो से डोर से जो है कूलर एयर रस करेगा तो किचन में काम करने में आसानी होती है। लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिन से हम लोग खाना बनाने में डिफिकल्टी फील कर रहे थे। तुम लोग को तो केवल खाना है ना, हम लोग को खाना भी बनाना है, तो उस समय डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा हीटेड था प्लेस ये पटना Yes, है। और हम लोग आर्टिफिशियली भी इसको हीट जोन बना दिए हैं। क्यों कि जरा सा भी दिक्कत हुआ तो चलो एसी को ऑन कर दो। हाँ, इट डजंट मैटर कि हाउ मच harmful gas released by the AC. We are selfish animal. We should fulfill our selfishness, है ना? यस मैम। कौन इन्वायरमेंट Yes, को ma'am. देखता है? क्यों इन्वायरमेंट को देखे? पहले अपना न देखेंगे। हाँ? और ये नहीं कोई सोचता है कि हमको अल्टीमेटली कहाँ रहना है, इन्वायरमेंट में जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और उसी इन्वायरमेंट के अंदर हमको रहना है। घर में के नहीं रहेंगे। लैंड एक्सक्यूज मी मैम। हाँ
एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम जब कन्वेक्शनल करंट से मैम जो एयर हॉट होके ऊपर जाती है मैम, उस एयर की काइनेटिक एनर्जी तो मैम कम होती है, तो मैम नहीं। फिर वो एयर कहाँ जाएगी? अच्छा सुनो ना, ये जब ऊपर गया है ना, चला गया मेरे सबसे, ये सब जगह से जो है ना एयर जो है ऊपर चला गया, काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ गया, लेकिन उसके पास जितना एनर्जी है काइनेटिक, उतना ही अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वो जाएगा ना। ग्रेविटी तो सारे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। Yes, ma'am. Yes, अर्थ जो है सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और Yes, ma'am. उसके अगेंस्ट वो वर्क करके उसी के अगेंस्ट जा रहा है। एक तरफ अर्थ खींच रहा है सारे ऑब्जेक्ट, तो वाटर वेपर जा रहा है उसको नहीं खींच रहा है, उसको भी खींच रहा है, लेकिन वाटर वेपर में जो काइनेटिक एनर्जी है उसके वजह से वो राइज अप हो रहा है और क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जब जाते जाते क्लाउड में क्या वो क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है, वो जा रहा है और वो वर्क कर रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। जो वाटर वेपर में इंटरनल एनर्जी है उसके कॉस्ट पर वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करके और ऊपर जा रहा है स्काई में और क्लाउड बना रहा है। और वो जब सफिशिएंटली वो कूल हो जाएगा तो फिर हम ही लोग के पास आ जाएगा, किसके फॉर्म में आ जाएगा? रेन वाटर। Yes, ma'am. वाटर। लेकिन रेन वाटर के फॉर्म में। अब Yes, ma'am. अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स सानवी ऐसा नहीं है, ये अर्थ के वजह से जो है हम लोग का एयर का इनवेलप है ना, एटमॉस्फेरिक Yes, ma'am. जो एटमॉस्फेयर है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ऐसा नहीं होगा कि इसका हीटिंग कर देंगे और वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा, इतना एनर्जी होगा तब ना। हाँ, यहीं पर आस पास रहेगा, क्लाउड बनाएगा, फिर कूलिंग होगा तो फिर आ जाएगा अर्थ सरफेस पर एज अ रेन वाटर। मैम जैसे कि मैम वन मोर क्वेश्चन। हाँ आस्क। मैम जैसे कि मैम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर एयर आती है, तो मैम वैसे ही ऊपर में जब एयर है तो मैम वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ना? देखना ना, आज मैम बैठ के देखो ना, आज देखो ये सब चीज तुम बैठ के देखो, आज आप बालकनी में बैठ जाओ, देखो कैसे मूवमेंट होता है क्लाउड का, देखना तो। यस मैम। कि देख चुके हो, इसके पहले तुम लोग देख चुके हो? मैम मूवमेंट तो होता है। हाँ तो मूवमेंट होता है ना। यस मैम। हाँ अनुष्का कुमारी, हाँ अनुष्का तुम्हारे माइक से आवाज बहुत आ रहा था, इसके वजह से हम तुमको म्यूट किए हैं, तो अभी हम अनम्यूट कर दे रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए। इस बात का हम तुम लोग ध्यान रखोगे ना, क्लास जो है अच्छे से हो। हाँ यस मैम। यस मैम। कहाँ है अनुष्का? हाँ चलो, अनुष्का कुमारी अनम्यूटेड 7B, चलो। यस मैम। हाँ मैम मैं बोल रही थी कि क्लाउड्स का मूवमेंट होता है। कल भी यहाँ पे मौसम खराब था, बहुत तेज हवा चल रहा था, तो मैं बालकनी में बैठ के नोटिस की थी बादल बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। हाँ मूव कर रहा था ना, देखे थे ना तुम लोग। और ये देखो लोग, प्रेशर के वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है, इसके वजह से केवल एयर का फ्लोइंग नहीं होता, हम लोग के अर्थ सरफेस। प्रेमादित्य तुम्हारा ध्यान कहाँ गया? हम जो बता रहे हैं उसको सुनो। बोले ना कि घर का सारा कुछ ये कर करके इग्नोर करके जो हम पढ़ा रहे हैं, फिर वीडियो ऑफ कर दिया ताकि हम तुम उधर देख सको। प्रेमादित्य क्या होता है ना, अर्थ सरफेस के भी नीचे कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। अर्थ के नीचे जो है ना जो रॉकी मटेरियल है वो मोल्टेन फॉर्म में है, और उस रॉकी मटेरियल को जो मोल्टेन फॉर्म में है उसको मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। तो वो जो है मैग्मा का भी फ्लोइंग होता है। और पढ़ोगे 8th क्लास में अर्थक्वेक में एक चैप्टर है अर्थक्वेक, तो उसमें पढ़ोगे कि वो कंसंट्रेशन डिफरेंस के वजह से, जैसे एयर का फ्लोइंग होता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर,
तो उसी तरह से मैग्मा का भी फ्लोइंग होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और उसी मैग्मा में हम लोग जिस सरफेस पर हैं, जिस सरफेस पे हम लोग हैं, उसको लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। तो वो प्लेट Yes, ma'am. भी मूव कर रहा होता है। तो मूवमेंट जो भी है ड्यू टू डिफरेंट इन द कंसंट्रेशन। आगे बढ़े क्या? Yes, ma'am. Land bridge and sea bridge, most important thing. Land bridge. It is land and it is sea. Which will hit it first? कौन पहले हिट होगा? Ma'am, मैम land. लैंड। मैम क्यों? लैंड क्यों मैम क्योंकि वहाँ सन क्यों लैंड का हीटिंग क्यों पहले होगा? देखो, हम बोलते हैं कि जो पढ़ना है उसको 2-3 बार या पढ़ने के जस्ट बाद ही, अभी क्लास खत्म होगा उसके बाद, नहीं तो पहले से पढ़ के रखना सब। अरे लैंड जो है, लैंड का हीटिंग हो रहा है कंडक्शन। लैंड इन द लैंड सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, है ना? Yes, ma'am. And when Yes, the ma'am. heating takes place, only their molecules vibrate. They are not allowed for movement. And when the sun radiation is coming, only the upper layer of the some layer get heated, because the molecules are not able to move from one place to another place, and only they transport the energy from one molecules to another molecules. And what this heating is known as conduction. कंडक्शन Whereas in the sea is having water and the molecules are loosely tied, they are free for movement. Molecules of water free for movement, and that's why the heating process that takes place in the liquid water, it is convection. And when the heat transferred to one molecules, how it is transferred? The sun radiation give the heat to the upper parts of the water molecules. After taking, it has started moving up. The next molecule come and take the heat. The next one. In this way, due to movement of the molecules, heating takes place in the sea. That's why Yes, ma'am. for heating it takes a longer duration of time. Longer duration of time. So in the daytime, sun radiation fall on the land as well as sea. Land get heated up. When land get heated up, the air above the land, after getting heat, it becomes lighter and rises up, creating the low pressure areas. Whereas Yes. the sun radiation heats the sun, sea water, but sea water heating takes long duration of time. It takes long time period. So daytime, till the daytime, it is not too much hot. It remains in the cold, in compared to land. So air above the sea having high pressure. On the sea, it is high pressure areas, and on the land, it is low pressure areas. So, Area. when Ma'am, the so pressure the- difference takes place, They will flow from land. so what air will flow from high pressure area to
low pressure area. low pressure area. It is land bridge. Sorry, it is what? Ma'am. It is Sea breeze. sea bridge. Sea Sea breeze. bridge. Because the air is traveling from sea to land. So it is what? It is sea bridge. Sea breeze. If the air Yes, ma'am. that is traveling from sea to land, higher pressure area to low pressure area, that is known as sea breeze. And this sea breeze maintain the temperature of the place that is near about the sea. And that's why Bombay and Bangalore, whatever area that is present near the sea, having the maintained temperature. Though they are nearer to the equator, but they are not hot place because their temperature maintained by the sea breeze. Sea. Yes, ma'am. What happened at that night? Ma'am. Ma'am, at night the land breeze passes to the Ma'am. sea. Ma'am, the sea molecules cool down very quickly. Water of the sea, and it is land. As the land get heated up more quickly, in same way land cool मैम down. लैंड का एयर ना हीट होता होगा. हाँ, लैंड जितना जल्दी हीट होता है उतना ही जल्दी ये कूल भी हो जाता है. तो कूल हो गया तो इससे क्या हो गया? लैंड पे कैसा हो गया? कौन सा प्रेशर? हाई pressure. अब जो है धीरे धीरे कन्वेक्शनल करंट से सी का वाटर हीट हुआ है, अभी गर्म हो गया. धीरे धीरे हीटिंग हो रहा था ना, स्लो हीटिंग कन्वेक्शनल करंट से, तो ये गर्म हो गया है, हीट हॉट वाटर हो गया. ये सी वाटर बिकम हॉट सी वाटर. तो क्या होगा? इसके ऊपर का एयर क्या ऐसा होगा? Ma'am, Warm up. Air on the sea water get warm up and creating low pressure area. So at the night, what happened? Ma'am, warm air. Air flow from land to sea. This is known as मैम लैंड पर भी जो सनलाइट पड़ता है तो मैम उस पर भी ना एक अपना कन्वेक्शनल करंट होता है मैम, क्योंकि उस वक्त लैंड हॉट होता है और उस पर एयर जो होता है वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर का एयर नीचे आता है. हाँ, यही तो होता है. अब ये नाइट टाइम में क्या होगा? फिर ये एयर रश टुवर्ड्स द सी. तो दिस इज नोन एज लैंड ब्रिज. Flow of air from land to sea, that is known as land bridge. land breeze. Movement of air from land to sea, it is known as land bridge. देखो बच्चे, हम कल ये होमवर्क हम डाले या नहीं डाले स्नैप होमवर्क में, आपको लैंड ब्रिज, सी ब्रिज एकदम बिल्कुल लर्न कर लेना है, समझ के लर्न करना है. समझ के लर्न करोगे तभी तुम लोग आंसर कर सकोगे. उसके बाद डू यू नो है वो 71 पेज में, उसको भी तुम लोग थोड़ा पढ़ोगे, क्योंकि बिना पढ़े नहीं समझ में आने वाला है. और ये रेडिएशन तो आसान है, ये रेडिएशन और ये इसका एक्सपेरिमेंट भी, अगर 2 थर्मोमीटर होगा तो तुम लोग ले करके रखोगे, अपना खुद एक्सपेरिमेंट कर लोगे. मेरा तो एक थर्मामीटर दिखाए थे टूट गया है, लेकिन जिसके पास भी अगर 2 थर्मामीटर अवेलेबल होगा वो लोग 2 थर्मामीटर अपने पास रखेंगे जब हम पढ़ाएंगे. और एक व्हाइट क्लॉथ, इसके लिए नया क्लॉथ की जरूरत नहीं है. मम्मी का साड़ी, दुपट्टा या कुछ भी होगा, ओल्ड वाला क्लॉथ, व्हाइट वाला,
उसे थोड़ा सा फोल्ड वाला, ये नहीं कि कह दिए तो मैम कह दिए तो नया वाला से काट देना, ऐसा नहीं करना। हाँ, और ब्लैक कलर कोई कपड़ा होगा, कोई ओल्ड ही कपड़ा होगा, नहीं ब्लैक होगा तब डीप कलर का जो भी होगा वो लेना, नहीं तो पेपर होगा तो पेपर ही ले लेना, ठीक है ना। अब ये नहीं कोई ऐसा नहीं Yes, करेगा ma'am. कि मम्मी का नया कपड़ा ड्रेस काट देगा, कहेगा मैम तो कहीं थी ये एक्सपेरिमेंट करने, ऐसा नहीं करना है। पेपर ही, व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर, No, ma'am. हाँ, तो वो ले करके रखना है कल के क्लास के लिए। और सभी जो है इसको ड्रॉ करके रफ पेज में, रफ पोर्शन में इसको ड्रॉ करना है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। मन में उसको ये रेडी करके नहीं, उसको मन में करना है कि क्या क्या होगा, कैसे हाई प्रेशर होगा, कैसे लो प्रेशर होगा। सबसे पहले कन्वेक्शन में क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, जिसके वजह से ये करना होगा, दिमाग में रखना होगा हमेशा कि उसमें जो हीटिंग प्रोसेस होगा कन्वेक्शन में वो क्या होगा, स्लो होगा। और ये बात तुम लोग किचन में भी देख सकते हो, रोटी जो बनता है ना सॉलिड है ना, तो रोटी जब से उसका बेकिंग करते हैं तो जल्दी जल्दी बन जाता है। वही चावल के लिए वाटर चढ़ाते हैं, हाँ, खाना बनाने के लिए, तो वो थोड़ा टाइम लेता है तब हीट होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, थोड़ा सा Yes, टाइम ma'am. लेता है। तो Yes, ma'am. होता है. तुम लोग चूंकि रोज देखते हो घर में ये काम होता है, कुकिंग होता है घर में, तो वो देखोगे कि वाटर जो है ना, वाटर का हीट करने में लंबा समय चाहिए, और जो है ये सॉलिड का हीटिंग जो होता है तुरंत हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम कंडक्शन एंड कन्वेक्शन पहले लर्न करोगे, और फिर उसके बाद ये ग्लोबल एयर पैटर्न